Students, a very good morning. I think everybody has joined, no? No, still I'm waiting for some more students to join the class. Anyways, a very good morning to all of you, those who are there in the class. Hope every one of you is keeping fine. Today is again very chilled. बहुत chilly है आज. It's raining also. Take a proper care of yourself. अपना ध्यान रखें. Parents का ध्यान रखें. Parents की बातें माने. Or try to be in the class, join the class on just right time. Because what I find that key every day it's happening that mid of the class we have got too many students, and by the time the time passes, at the end of the classes I find very few of there are there in the classes. But हो सकता है, maybe you might be having some net issues and all, but बच्चे हम लोग को अभी तो we are running in this such a pandemic, तो हमें ऐसे क्लासेस लेने हैं. और आपके annual examinations are going to start on this regular time, which is their March first week or last week of February, we don't know. तो हमें अपना प्रिपरेशन तो रखना है ना. हमें अपना प्रिपरेशन तो ऐसा रखना है कि we are getting good marks और हमारे टाइम भी पास हो रहे हैं. मतलब we are passing the time, we are getting into the higher classes. इसके बाद अब 6 चले जाएंगे. So आपके रेगुलर एक रूटीन होना चाहिए. You must be there in a routine that by 8 o'clock everybody gets wake up. जल्दी जल्दी उठ जाए. मॉर्निंग केयर करने के बाद just have your breakfast, take your uniform and take a corner of your house जहां पे आपकी आवाज नहीं आए, और वहां पे आप 9 to 2 o'clock be there. और आपको जो ब्रेक मिलता है you can go for washroom and you can go for some snacking and all, वो 15 minutes के ब्रेक में कर ले. But again when you join the class with a fresh mood, if it is English class, उस English class को वैसे उसी mood के साथ join करें, तो you will love the classes, है ना. I'm also taking the class from home. You can see that background. I'm from my home only. But ऐसा नहीं है कि मैं आपकी क्लास में लेट से आ रही हूँ, है ना. That is my work. मुझे अपने बच्चों के साथ 11 o'clock हो जाना है. तो आपको भी अपने टीचर के लिए सोचना चाहिए that she must be waiting for you people, है ना. और हमारे पास यही 45 मिनट्स का टाइम है. इसी में हमें कोर्स कंप्लीट करने हैं, रिवीजन करना है. हम रिवीजन कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि we are going to be very, चलो भैया अभी तो रिवीजन चल रहा है, कोई इंपॉर्टेंट लेसन्स तो नहीं चल रहे, बट रिवीजन इज रिवाइज. इफ यू हैव लेफ्ट समथिंग इन योर क्लास, हम वी आर डूइंग द रिवीजन. सो रिवीजन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. नियति है नहीं है, रिवीजन इज इक्वली इंपॉर्टेंट बच्चा लोग, है ना. रिवीजन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. इसमें हम जान पाते वेयर डू वी स्टैंड, हम कहाँ पे हैं, क्या हमने लर्न किया है प्रॉपर्ली. तो ये हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. So take the revision classes as equal as your regular classes. Okay, chalo. So yesterday we did the revision of lesson 9 na. Utsav is there. उत्सव क्यों किसी से ही पूछते हैं जो कल क्लास में थे. कौन कौन सी क्लास में थे? जस्ट रेज योर हैंड. 4 5 6 7 12 14 गुड 15. चलो. अतिका इकबाल. नाम yes, फिर मैम. नाम बोल दो फिर से अपना, मुझे सवाल करने में. मैम आतिका इकबाल. आतिका इकबाल. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आतिका? Happiness. Yes, ma'am. You are such a happy girl. देखो happiness बोलते हुए भी खुशी खुशी बोल रहे हैं ना. So a very happiness for Atika. Okay, तो हम लोगों ने कल कौन सा क्लास किया है अतिका? कौन सा लेसन? 9 का रिवीजन किया. 9 का रिवीजन किया. और लेसन 9 हमारा क्या था? फ्यूल. ओके, फ्यूल्स. तो हम लोगों ने कल कहा था कि हम लोग फ्यूल्स थोड़ा पढ़ेंगे, फिर विल मूव टू नेक्स्ट नेक्स्ट लेसन, है ना. फ्यूल्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि फॉसिल फ्यूल्स के बारे में लास्ट था, है ना. इसमें ये देखा गया कि फॉसिल फ्यूल्स आर दो सोर्स ऑफ एनर्जी which are non-renewable. They cannot be renewed. They cannot be replenished, है ना. उसे replenish नहीं कर सकते readily. बहुत easily हम replenish नहीं कर सकते हैं.
Can you give some examples of source of energy which can be replenished easily? Ma'am, solar energy, wind energy, tide energy, water energy. Okay, sun, wind, and water. These are these sources of energy which we use it, Yes, ma'am. which are in ample, which are in adequate amount. बहुत ज्यादा है हमारे पास. तो बहुत ज्यादा होने से क्या होता है, हम इसका क्या करने करते? मैम, ज्यादा होने से हम लोग उसका कदर नहीं करते. एग्जैक्टली, क्या बात कही है अतियाक ने, एकदम सही बात. हमारे पास कुछ ज्यादा हो जाता है ना, हम उनकी कदर नहीं करते, हम उनकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते. एकदम सही, इतनी खूबसूरत बात आपने कही है, इतना खूबसूरत वर्ड यूज किया है, हम उनकी कदर नहीं करते. सही बात है. हमारे पास जो चीज ज्यादा होती है ना, हम उसकी कदर नहीं करते, हम उनकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते. बच्चे और जब बच्चे आप इस Yes, चीज को ma'am. जाने. एवरीबडी मस्ट नो. आपके पास ज्यादा है इसका मतलब नहीं है उसका इंपॉर्टेंस हम छोड़ दें. नेक्स्ट लेसन उसी पे बेस्ड किया हुआ है. द नेक्स्ट लेसन इज अबाउट कंपोजिशन ऑफ एयर, जिसमें कि हमारे पास एयर एम्पल में है, बहुत ज्यादा है, हमने इनकी कदर ही नहीं की, हमने इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा. और आज क्या है, एयर का जो इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑक्सीजन. हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं. हमने इनके बारे में ना सोचते हुए हमने बहुत मात्रा में डिफॉरेस्टेशन किया है ना. Yes, हमने ma'am. घर बनाने के लिए पेड़ काटे, हमने अपने जमीन को साफ किया ताकि हम उस पर घर बना सके. और आज की डेट में हम ऐसे पेंडेमिक में हैं जहां पे हमें घर में बंद कर दिया गया है ना. हम Yes, बीमार ma'am. पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन हम खरीद के ला रहे हैं, जो कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में थी, प्रचुर मात्रा में थी. अतियात, मैंने सही कहा? Yes, ma'am. यस मैम. और क्या हो रहा है, हम ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे कि हम इस जो हमारे पास है उसको भी हम गंदा कर रहे हैं. वी आर पोल्यूटिंग दिस. और ये Yes, ma'am. हमारे अपनी एक्टिविटीज से, by the own activities, our own activities, we are polluting this environment, we are polluting this air. इसके causes क्या हैं हम पढ़ेंगे इस लेसन में, and then we'll see what are its after effects. इसके after effect क्या है, क्या इसके after effect भी कुछ है? yes, इनके कुछ after effects भी हैं. और कैसे हम इसको prevent कर सकते हैं, how can we prevent this? The next lesson is all about composition of air. What is air pollution? What are the reasons for this pollution? What are the causes of it? What is its effect? How does it affect? And how can we prevent it? Okay? तो ये आपने पढ़ा हुआ है क्लास में. हम एक क्विक रिकैप करते हैं इस लेसन का, and then we'll come back to the question answer section. ठीक है? सही है? Yes, ma'am. यान अब्दुल्ला, am I right? हम लोग ये फटाक से क्विक रिकैप करें. Yes, ma'am. अंशिका. Yes, ma'am. Okay, to start with you, Vanshika. Composition of air जब पढ़ाया गया था, you have been told that if we assume air, composition of air as a circle, as a in set हम उसको सोचे, तो what percentage of nitrogen is there in the atmosphere? Ma'am, 78%. यानी कि the maximum occupancy या जितना occupancy एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी किसका है, ऑक्यूपाई किसने किया हुआ है? नाइट्रोजन ने किया है. एंड नेक्स्ट इज Ma'am, oxygen 21%. okay, next is oxygen, and rest carbon dioxide, carbon monoxide, and water vapor. These all come under 1%, है ना. Yes. 78% अगर नाइट्रोजन है तो बचा कितना? 22%, 100% करने के लिए, है ना. उसमें बताया हम लोगों ने 21% हमारे ऑक्सीजन है, एंड द रेस्ट इज 1%. हमारे ये 1% हमें कितना इफेक्ट करता है ना. हमारा सिर्फ ओनली 1% हमें कितना इफेक्ट करता है, इस लेसन में हम वो देखेंगे. चले एक मिनट रुक जाओ, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ.
Window closed. Arey, just a minute. Let me share it again. Can you see the board? Can you see my screen? ऐसी आवाज कहां से आई? किसके दरवाजे से? एकदम लगा किसी हॉरिबल मूवीज का आता है ना, हॉरर मूवीज का, गेट खुला फिर बंद हो गया, लाइक दैट. बाप रे, आई गॉट स्केयर्ड. देखो कंपोजिशन ऑफ एयर, दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. See, this is composition of air. इसको और close ले जाए. This 78% is nitrogen. 20.9%, 21% कहते हैं, 0.9 हो गया तो that is oxygen, and other gases is 1%. आप सोचो ये जो 78% है, ये नाइट्रोजन का कुछ इंपॉर्टेंस भी है? कौन बताएगा? इज देयर एनी इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन? आपको जरूरत है क्या नाइट्रोजन की? राजकुमार, आर्या मित्तल, अनम्यूट करो. What is the importance of this nitrogen? What is the importance of this nitrogen? What, ma'am? What is the importance of this nitrogen in the air? It is water is that everyone that one water it gives out everyone is called solution. Who is saying? Who is reading something? कौन है? आर्या मित्तल, मैंने कहा what is the importance of nitrogen? एक रिक्वेस्ट है, we have got very limited time. If you don't know the answer, say ma'am, I don't know the answer, so that I can pass the question to somebody else. Arya Mittal, Yes, ma'am. do you know the answer? हाँ, तो जवाब दो ना. You're not giving the answer, you're simply sitting. Give the answer. Kshitij Raj, he wants to give the answer. Bolo. Ma'am, nitrogen gas present in air and also interest from the growth of the plant. Okay, nitrogen gas present in air is at the most important for the plants, for their growth. Aman. Yes, ma'am. Nitrogen is very important for plants in their growth. It helps the plant to rapid growth. It also develops the quality and size of the fruits and seeds. Good, very good. From where you're reading? Ma'am, को याद है. Good, very good. If you have learned. Now tell me, if it is there ample in the air, atmosphere में है, तो plants उसको directly लेते होंगे? Plants को तो ये directly What, हवा से ma'am? मिल जाता. Plants को तो इसको directly हवा से मिल जाता होगा? No, ma'am. Ma'am, plants nitrogen gases को utilize करते हैं soil के through में. Very good, very good. Yes, that's what I was asking. ये nitrogen plants को चाहिए for their growth. लेकिन यहाँ पे क्या है? Plants cannot use it directly from the atmosphere. Right, Aman? Yes, ma'am. Then how do they use it? Ridhima. Then how do they use this nitrogen? हवा में है. Plants तो respiration हवा से करते हैं. Then ये अगर ऑक्सीजन ले सकते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सकते हैं, तो व्हाई नॉट नाइट्रोजन? क्या मैम? Then how do they use nitrogen? How they do use? They use nitrogen for their growth. कैसे? क्या ये ब्रीद इन करते हैं इसको? क्या मैम? क्या ये ब्रीद करते हैं इसको? How do they use it? मैम ये नाइट्रोजन सॉल्ट्स को अब्सॉर्ब करते हैं। भाई सॉल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, तो हाउ दे विल गेट द सॉल्ट? मैंने कहा ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैसे यूज करते हैं फॉर द ग्रोथ? उत्सव, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट, लेट रिद्धिमा गिव द आंसर फर्स्ट. इफ शी विल नॉट बी एबल टू, देन आई विल आस्क यू. म्यूट मत करो. हाँ, Bacteria is present in soil help to convert the atmospheric nitrogen into such specific forms, nitrate and ammonium salts. मुझे आप इसको अपनी भाषा में समझाएंगे? आपने रीड कर लिया, गुड, लेकिन मुझे आपको कितना समझ में आया? बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को स्पेसिफिक फॉर्म में, नाइट्रेट एंड सॉल्ट में. उत्सव, गिव दिस आंसर. रिद्धिमा म्यूट करो. The bacteria present in the soil help convert the nitrogen into specific forms. It means nitrates and ammonium salts. The plants absorb these nitrates and ammonium salts to form proteins. आपके बुक में जो रोल ऑफ नाइट्रोजन है, वहां पे अगर आप देखेंगे, it is clearly written that plants need nitrogen for its growth, for the better good quality of fruits, for the good quality of flowers, for a good quality of their seed. But ironies with the plant are that they cannot absorb this nitrogen directly from the atmosphere. Am I right? Yes, ma'am. Yes, they cannot absorb directly this nitrogen from the atmosphere. कौन help करता है? The bacteria present on the soil catch hold of this nitrogen, converts the nitrogen into the nitrates, the salts, ammonium salt, and then these salts are being absorbed by the roots and given to the plant. हम बचपन से पढ़ रहे हैं, plants absorb water and mineral, and this is what mineral we were talking about. Okay? Class 1 में भी पढ़ा, 2 में भी पढ़ा. What is the role of root? Root का रोल क्या है? तो वो क्या करता है? वाटर और मिनरल को अब्सॉर्ब करता है. कभी ये सोचा व्हाट इज दिस मिनरल? ये वो मिनरल्स है जो हमारे सॉइल में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम सॉल्ट एंड नाइट्रोजन नाइट्रेट्स, है ना? तो ये उसको अब्सॉर्ब करते हैं रूट्स, एंड कहाँ सेंड करते हैं? टू द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ. ठीक है? जहां पे ये सॉल्ट कम हो जाता है, जहां पे ये सॉल्ट नहीं मिलता है, वहां के प्लांट्स क्या बन जाते हैं? What, ma'am? जो सॉल्ट, जहां पे ये सॉल्ट कम मिलते हैं, वहां के प्लांट्स क्या बन जाते हैं? मैम इंसेक्टिवोरस. Good, excellent, right, भूमि, right. या जहां पे ये सॉल्ट कम हो जाते हैं, जहां के सॉइल में इस तरह के अमोनियम सॉल्ट या नाइट्रेट्स नहीं मिलते, वहां के प्लांट्स इंसेक्टिवोरस बन जाते हैं, and they replenish their need of this nitrogen for their growth. They start taking insects as their food. उत्सव, Yes, ma'am. क्योंकि insects में मैम ये सब चीजें होती है मैम, nitrates and प्रोटीन होती ammonium है. आकर्षण, are you Yes, okay? आकर्षण, are you okay? वो अच्छा, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं दिन के 11:30 बजे? No, ma'am. I am eating apple. You're eating apple, okay. चलो, तो क्या हो रहा है ना कि जहां के सॉइल लैक करते हैं these minerals में, वहां प्लांट जो है वो इंसेक्टिवोरस बन जाते हैं, so that
they can replenish that need of nitrogen which they need for the growth. सही है ना? अब समझ में आया आपको? Yes, ma'am. तो दिस Yes, इज द ma'am. रोल ऑफ नाइट्रोजन. ये हमारा रोल है नाइट्रोजन का. हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत है. 78% और 21% हमारे ऑक्सीजन है जो हम यूज करते हैं. ऑल लिविंग थिंग यूज करते हैं. एवरी लिविंग थिंग यूज दिस ऑक्सीजन. पता है आपको ना? प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर एंड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन डू दे टेक इन Yes, कार्बन ma'am. डाइऑक्साइड? Ma'am, they inhale carbon dioxide and give oxygen. No, bacha. Plants also inhale oxygen and give out carbon dioxide like us. When they do respiration. But during the process of photosynthesis, that is why they take in carbon dioxide and give out oxygen. इसीलिए रात के वक्त जब सन नहीं होता, photosynthesis नहीं होता, they respire like you and me. सही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. तो आप सोचो 78% नाइट्रोजन है, उसके बावजूद प्लांट्स इन ऑक्सीजन का नाइट्रोजन को नहीं ले सकता क्योंकि उसमें ये कैपेसिटी नहीं है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कर सके. रादर जो सॉइल में बैक्टीरियाज होते हैं, they can absorb this, they catch hold of this nitrogen and convert the nitrogen into the ammonium salt and nitrate, and then these salts are being absorbed by the roots and given to the plants. यहाँ तक सही है? समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then comes Yes. atmosphere. हम लोगों ने नाइट्रोजन पढ़ लिया, हमें ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस बताएं. अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर एज अ शील्ड. है ना? हमारा एटमॉस्फेयर एक शील्ड का भी एक शील्ड है. यू ऑल नो व्हाट डू वी कॉल दैट शील्ड एज? हम उस अम्ब्रेला का क्या नाम रखे हैं? Ma'am, ozone. Ma'am, ozone gas. Very good. So that is an Ozone layer. That is an ozone layer. है ना? ये वो लेयर है, ये वो शील्ड है. अभी ठंड बहुत है तो हम लोगों ने अपना विंटर ड्रेसेस निकाल लिए हैं, है ना, अपने आप को बचाने के लिए. वंशिका ने अपना ब्लेजर निकाल लिया है और हाईनेक भी पहन लिया है. अपने आप को पूरे बचाने की कोशिश कर रहे हैं. हमारे इस अर्थ को भी बचाने के लिए उस एटमॉस्फेयर के ऊपर एक शील्ड है ना, एक शील्ड है. एंड वी कॉल दैट लेयर ऑफ एयर एज ओजोन लेयर. सही है? ओजोन ये वो लेयर ऑफ एयर है जो कि ओजोन से बना है. ओजोन लेयर ये क्या करता है? ये आपको प्रिवेंट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज टू गेट इनटू द इनटू द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ. हमारे सन रेज से कुछ अल्ट्रावायलेट रेज भी निकलते हैं, उसको वहीं वो रोक देता है. छतरी क्या करती है? बहुत तेज धूप से रोकता है ना. आपके पास इफ यू हैव गॉट अम्ब्रेला धूप होती है तो हम उसको खोल लेते हैं ताकि हम तक वो धूप डायरेक्टली ना आ सके. या फिर बहुत तेज बारिश होती है, देन आल्सो वी कैच होल्ड ऑफ दिस अम्ब्रेला. ये हमें बचाता है. नेचर ने अपने आप एक अम्ब्रेला हमें दिया है ताकि सन रेज से जो हार्मफुल रेज है वो आप तक ना पहुंचे. अगर ये आप तक पहुंचता है तो आपके स्किन के लिए खराब करेगा, आपके प्लांट्स को डैमेज कर देगा, आपके क्रॉप को डैमेज कर देगा. तो एटमॉस्फेयर आपके बारे में शुरू से ही सोचा, नेचर ने आपके बारे में सोचा है. लेकिन क्या हमने नेचर के बारे में सोचा? नहीं. हमने क्या किया? We started polluting the air. Now comes the term pollution of air. What is pollution? Adding something, some adulteration. कुछ ऐसी चीजें ऐड कर दे किसी चीज में और वो चीज मतलब खराब हो जाए. That is called pollution. है ना? घर में पोल्यूशन कैसे हमको दिखता है? हमारा एयर पोल्यूटेड है कि नहीं, कैसे दिखता है? एक एक्टिविटी करवाया गया था आपको क्लास में, मैंने करवाया था 5C में. 3 activities were done for हाँ, हमने एक्टिविटी में क्या दिखाया? कैसे हमें पता है कि हमारा एयर, हमें तो लग रहा है कि हमने घर चारों तरफ से बंद रखा हुआ है, खिड़कियां बंद है, दरवाजे बंद है, हमारा एयर सबसे प्योर है. एक बार अपने पंखे को देख लो. आपके पंखे में आपका वंशिका ने देखा ना, है ना गंदी थोड़ी सी, थोड़ा बहुत तो है ही. हाँ, कैसे? क्या आपने धूल छीटा है ऊपर? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना.
लेकिन हवा के ma'am. साथ जो भी गंदगी रही, डस्ट रही, उसको वहां रहने का जगह मिल गया और वहां पे वो जम गया। यस मैम, वो मैम 7 दिन के बाद ना गंदा हो जाता है ऐसे। हाँ, तो साफ करते हैं, मम्मी को हेल्प करते हैं आप लोग? यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. कौन बोल रहा है यस यस मैम। अच्छा, मैं पूछती मम्मी से अलग से, सबसे, सबकी मम्मियों से, कितने बच्चे आपको हेल्प करते हैं? सबकी मम्मियों को आज मैं शाम में फोन करती हूँ अलग अलग से और पूछूंगी, प्रियेश इतना शांति से बैठा है, करते हो हेल्प? मैं पूछती हूँ सबको, सबका नंबर मेरे पास है और सबकी मम्मियों को मैं अलग से फोन करके पूछूंगी कितने बच्चे आपको हेल्प करते हैं घर को साफ रखने में। आप तो सफाई करते हैं दूसरी तरह की, घर में कचरा फेंक के, जहाँ जहाँ, हाँ आकर्षण करता ही है, मुझे पता है, जहाँ पे No, ma'am. मैम मैं अपना चिप्स का पैकेट डस्टबिन में फेंक देता मैं हूँ। अपना रूम क्लीन रखता हूँ। ओके, ये तो बहुत अच्छी मैम मैं बात तो है। अपना चिप्स का पैकेट डस्टबिन में फेंक देता हूँ। हाँ, तो आकर्षण ने चिप्स का पैकेट क्लास में ही फेंका, बैग में रखा था, मैंने देखा था, खाया, उसके बाद एक पैकेट बैग में रखा, दूसरा पैकेट उसने डस्टबिन में डाला। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट पोल्यूशन, है ना? ये पोल्यूशन हमारे एयर को जो हम पोल्यूट कर रहे हैं, ये हमारे एयर माने लंग्स के लिए, हमारे अपने बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है। एक एक्सरसाइज उसमें भी था कि दिन के समय रोशनी यहाँ से आती है, अगर हम लोग खिड़की का कोई कोना छोटा सा छोड़ देते हैं, अगर आपका रूम डार्क है थोड़ा सा, तो आप देखेंगे सनरेज जो आती है, बीम ऑफ रे, उसमें आपको डस्ट मिलेंगे छोटे 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 छोटे। यस मैम। दिखता है ना? पार्टिकल्स। हाँ, यस मैम। so that यस is मैम, डस्ट पार्टिकल्स। pollution, that is the pollutant। वंशिका कोशिश कर रही हूँ म्यूट करने का, अनम्यूट करने का, लो मैंने कर दिया तुम्हें अनम्यूट। हाँ, दिखा है ना वंशिका, दिखा है आपने? यस मैम, देख प्रियेश को दिखा है ऐसा पोल्यूशन वाला? यस मैम। बहुत। जब यस मैम मैंने भी देखा है, तब खिड़की खोलते थे तब दिखता था। आप सोचो, ये जो एयर है इसको हम इनहेल कर रहे हैं, हमारे पास कोई फिल्टर, अभी तो आप घर से बाहर निकलते तो यू यूज अ मास्क, घर में तो हम मास्क नहीं लगाते, तो अगर ये घर में भी हवा इतना ही गंदा है तो वी आर डायरेक्टली इनहेलिंग इट, और कहाँ जा रहा है हमारे ये सीधा हमारे लंग्स में। तो इट इज यस मैम, वो हमारे लंग्स को गंदा कर रहा है। हमें इफेक्ट कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा? यस मैम, कर रहा है। सो हाउ डज अ एयर गेट्स पोल्यूटेड? हमारा एयर पोल्यूटेड कैसे होता है? बाहर के झाड़ू देने वाले देखोगे, रास्ते में जो झाड़ू देते हैं, देखा है कभी? उसको कैसे रोक सकते हैं? अच्छा मुझे बताओ, उसको कैसे रोक सकते हैं? कैसे रोक सकते हैं? झाड़ू वाले को? हाँ, झाड़ू के धूल को कैसे रोक सकते हैं? मैम वहां से जाते समय मास्क पहन के जाएंगे, ऑफ कोर्स मास्क पहन के जाएंगे। और कैसे? थोड़ा सा उसको आइडिया दे देते हैं वो स्वीपर को कि बस झाड़ू लगाने के पहले थोड़ा पानी डाल दो, क्या हो जाएगा? वो हैवी हो जाएगा। अगर वो हैवी हो जाएगा तो धूल पे तो नहीं उड़ेगा ना, आपको स्वीप करने में फिर इजी होगी नहीं होगी? भी पानी डाले जाते हैं। हाँ, आप देखेंगे जो दुकानदार वगैरह होते हैं वो अपने घर दुकान के सामने झाड़ू लगाते हैं तो पानी छिड़क देते हैं ताकि जो धूल है वो भी हो जाए, है ना? इसका यूज अपने घर में मत करना, पिटाई हो जाएगी कि मम्मा झाड़ू लगा रही है पानी डाल दिया, पता चला मम्मा ने दिया 2-4 अच्छे से और कहा कि मैम मैंने तो कहा था जहां धूल हो वहां पानी डाल देना। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये घर के लिए नहीं है, मतलब ये झाड़ू जो रास्ते में दे रहे हैं उनकी बातें मैं कर रही हूँ। वरना घर भी पानी हो गया समझो। हाँ, फिर पिटाई भी लग जानी है और फिर मुझे भी डांट खा जाना है, मैम आपने क्या सिखाया बच्चों को? बच्चे हमारे घर में जहां धूल होती वहां पानी डाल देते। नो नो नो, डोंट डू दैट। लेकिन ये मैं कह रही हूँ जैसे खुली हवा में लोग झाड़ू देते हैं ना, तो अगर वहां पे थोड़ा स्प्रिंकल ऑफ वाटर कर दे तो ये धूल जो है वो हवा में नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कहाँ से और कैसे पोल्यूट हो सकता है ये? फॉरेस्ट फायर से। मुझे एक दो और आप लोग बताओ, एक दो और बताओ, हाउ कैन द वाटर? हाँ, ओके, फैक्ट्रीज। तो इसका मैम व्हीकल्स से। व्हीकल से मैम थ्रू व्हीकल्स बम्पर उत्सव पुराने जमाने के हिसाब से। एक मिनट, एक करके वंशिका ने कहा व्हीकल से, तो इसको कैसे रोक सकते हैं? हाउ कैन वी गेट इट रिड्यूस्ड? घर में बाय यूजिंग सीएनजी व्हीकल्स। नहीं,
मैम लेस यूज ऑफ व्हीकल्स। अच्छा सुनो ना, सुनो अतिया, एक जवाब, एक चेकअप कराएंगे व्हीकल्स का। गुड, यही आंसर मैं चाह रही थी। तो अगर व्हीकल्स पोल्यूशन दे रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए हमारे एंटी पोल्यूशन सर्टिफिकेट बने हैं, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कि आपका स्कूटर, आपका व्हीकल हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं कर रहा है। हमें ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि सही में ऐसा नहीं कर रहा है, या फिर हम अपने गाड़ी या फिर स्कूटी को घर में ही छोड़ देंगे, लेके निकलेंगे ही नहीं तो पोल्यूशन नहीं होगा। क्या ये सोल्यूशन है? ये सोल्यूशन, ये सोल्यूशन। मैम कभी अनुषा, छूटने की भी जरूरत नहीं अनुषा इज गिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल। मैम ऐसा कैसे संभव है? हम कहीं निकलेंगे ही नहीं, नहीं ये नहीं करेंगे हम। अदर आप कह सकते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया है, हम कार पूल कर लेंगे तो पोल्यूशन कम हो जाएगा। हम अपने यस मैम। गाड़ियों की रेगुलर सर्विसिंग मैम करवाएंगे गाड़ी से तो जाएंगे, पोल्यूशन कम हो दूसरी गाड़ी जाएगा। से जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना। ट्रांसपोर्ट सीएनजी। ओके। दूसरा, स्मोक्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर्स, अगर फॉरेस्ट में फायर लग जाए वो भी वन ऑफ द रीजन ऑफ एयर पोल्यूशन है। और एक बात परेश ने भी जो कहा था कि फैक्ट्रीज की जो धुआं है वो भी वन ऑफ द रीजन ऑफ पोल्यूशन है। इसको कैसे रोक सकते हैं? यस मैम, शॉर्ट मैम, मैम वहाँ की मैम जो मैम, चिमनीज long होती है उनको chimneys बहुत बड़ा बनाकर। बनाना चाहिए। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड। अनुष्का ने दिया है राइट जवाब। दैट द आंसर वाज कि हम उनकी चिमनीज को बहुत ऊंचा रखेंगे, टॉल चिमनीज, तो उसकी जो स्मोक होंगी इट विल बी ह्यूज। आपने भी जवाब दिया था, सेम आंसर। यस, नेक्स्ट, और क्या कर सकते हैं? और कौन कौन रीजन है? बर्निंग ऑफ कोल इन द पावर हाउसेस, दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर एयर पोल्यूशन। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इट? इसके इफेक्ट क्या है? इससे क्या होगा? It creates problems like suffocation, cough, headache, and so on. मैम एसिड रेन। चलो इसके, मैम, अब मैंने acid म्यूट किया है आप लोग सभी मैम, को। रीजन ये है कि एक साथ बहुत सा जवाब दे रहे तो मुझे जवाब समझ में नहीं आ रहा है। ओके, वन ऑफ द रीजन, पहला है जो अभी का सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, इज द सफोकेशन, ब्रेथलेसनेस, डिजीजेस लाइक एस्मा, कोरोना। अब हमारे इसमें ऐड हो गए, हमारे एग्जाम्पल में ये ऐड हो गया है ना। तो वन ऑफ द इफेक्ट इज दिस। सेकेंड इज जो ऑक्साइड से गैस बनते हैं, जो एसिड रेन फॉर्मेशन होता है, इट डैमेजेस द क्रॉप। उसके बाद बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने से क्या हो रहा है? हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इज इट सो? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? भूमि मुझे बताओ। Ma'am, ice caps of global warming, ice caps are melting and the amount of water is increasing. आदित्य राज का जो इमेजिकॉन्स आया है वो सर चकराने वाला है। क्यों, आपको क्वेश्चन सुन के सर चकरा गया? आदित्य राज सिंह 5B, स्टॉप सेंडिंग दीज टाइप ऑफ इमेजिकॉन्स। ओके, यस। भूमि ने कहा है कि व्हेन देयर इज अ ग्लोबल वार्मिंग, आप जाने ग्लोबल वार्मिंग जब होता है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेस। हमारे टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। आपको मैंने बताया वी हैव गॉट 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड ओनली 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और सारे गैसेस है। वो 1% में भी थोड़ा सा भी एनहांसमेंट होगा, थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस हैं। एंड ग्लोबल वार्मिंग will result in the melting of ice. आइस कैप्स के मेल्ट हो जाने के चांसेस हैं, ग्लेशियर्स के मेल्ट हो जाने के चांसेस हैं, एंड दिस विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर। ये वाटर के अमाउंट को बढ़ा देगा। ओके, हम कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं? हम इस लेसन को कल भी कंटिन्यू करेंगे। कल हम क्वेश्चन आंसर सुनेंगे। ओके, कल हम क्वेश्चन आंसर सुनेंगे। आज मैंने आपको रिवाइज करवाया है, कल हम इसका क्वेश्चन आंसर सुनेंगे। व्हाट आर द वेज, हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम एयर पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सबसे पहला, हम बहुत 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 मात्रा में प्लांट लगाएंगे और भूल जाएंगे। सही बोला ना? मैम ने कहा है प्लांट लगाओ, हमने प्लांट तो लगा दिया, उसको फिर भूल भी जाना है? No, ma'am.
नहीं, प्लांट लगाने के बाद यू हैव टू टेक अ प्रॉपर केयर ऑफ दोस प्लांट सो दैट दोस प्लांट ग्रो इनटू अ ट्री, ताकि ये ट्री बन सके। क्योंकि यही एकमात्र तरीका है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बैलेंस करने का। यही Yes, ma'am. एकमात्र तरीका है हमारे एटमॉस्फेयर को नॉर्मल टेम्परेचर में लाने का। सही है ना? सचिन इज नॉडिंग हिज हेड लाइक दिस, बहुत जोर जोर से हिला रहा है। यस, ठीक है। पहला है वी विल प्लांट मोर एंड मोर ट्री, एफॉरेस्टेशन करेंगे। दूसरा, जो वंशिका ने कहा, अपनी गाड़ियों को पार्क कर दें घर में, यानी यूज ऑफ लेस व्हीकल, कारपूल करेंगे, सीएनजी कार्स यूज करेंगे, Ma'am, regular checkup of vehicles. प्रॉपर चेकअप ऑफ व्हीकल्स, गुड। एंड हम ग्रीन फ्यूल क्यों यूज करने की कोशिश करेंगे, कारपूल करेंगे। उसके बाद क्या है, हम And यूज करें, dumping the garbage in a pit. हाँ क्या बोल रहे हो? Ma'am, When use dumping CNG the garbage in a vehicles. pit. हाँ,